Okay, students, a very good morning to all of you. Today we are going to find the solutions of all questions taken from exercise number 4.2 from chapter 4th, that is definite integral. Here we have given question number 1, that is we have to integrate to x plus 1 dividing by under root of x from 1 to 9. Okay, let us find the integral of x plus 1 dividing by under root of x from 1 to 9. We know that 1 is the lower limit and 9 is the upper limit. Okay, students, if we distribute the LCM, that is x plus 1 dividing by under root of x, we get x plus 1 dividing by under root of x, we get okay, if we distribute the LCM means under root of x. If we distribute under root of x, that is integral from 1 to 9 x upon under root of x plus 1 upon under root of x dx. ओके, क्लियर आया समझ में? अंडर रूट ऑफ एक्स को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे मीन्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, वी गेट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 9 एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 9 1 upon under root of x means written as x to the power minus 1 by 2 dx. Okay, and this one can be written as integral from 1 to 9 of x to the power 1 by 2 dx plus integral from 1 to 9 of x to the power minus 1 by 2 dx. आ गया समझ में? Since we know that integral of summation of two functions, integration of summation of two functions is equal to integration of first function plus integration of second function. यहाँ भी वैसे ही था, इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. तो रूट एक्स मीन्स क्या? पावर इज 1/2 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स था, इसको आप ऊपर ले गए तो वी गेट द पावर बिकम्स नेगेटिव, that is x to the power minus 1/2, and this one can be written as x to the power n, that is x to the power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 from 1 to 9. Okay, since we know that x power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. n is equal to 1/2, n plus 1 upon n plus 1, lower limit is 1, upper limit is 9, plus same to same यहाँ भी x to the power minus 1/2 plus 1 dividing by minus 1/2 plus 1, and lower limit is 1 and upper limit is 9. Okay, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ. This one is equal to x to the power 1/2 plus 1, that is x to the power 3/2. x to the power 3/2 upon x to the power 3/2 upon 3/2 from 1 to 9. Clear now? 1/2 plus 1, that is 3/2 upon 3/2, lower limit is 1, upper limit is 9, plus x to the power minus 1/2 plus 1 means 1 minus half, that is half, 1/2 upon 1/2 from 1 to 9. क्लियर ना? 1 में से हाफ निकल गया, दैट इज 1/2. You can write it as, since 3/2 is a constant, means 1 upon 3/2, that is 2/3 of x to the power 3/2 from 1 to 9 plus 1 upon 1/2, that is 2 x to the power 1/2 from 1 to 9. Okay, समझ में आ रहा है? आसान है. This one is equal to 2/3 of taking upper limit, that is 9 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2. Sorry, 9 to the power 1 plus twice of x के प्लेस पे upper limit 9, that is 9 to the power 1/2
minus 1 to the power 1 by 2. This one is equal to 2 by 3 of 9 means क्या 3 square. 3 square means 9 and whole to the power 3 by 2 and 1 to the power any. 1 का पावर कुछ भी रख दो तो 1 का 1 ही रहता है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा. प्लस ट्वाइस ऑफ 9 मीन्स 3 स्क्वायर टू द पावर 1 by 2 minus 1, ठीक है. 1 by 2 मीन्स कुछ भी नहीं. 2 by 3, 3 2 and 2 get cancelled, that is 3 power 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. 27 में से 1 निकल गया, that is 26. प्लस ट्वाइस ऑफ 2 and 2 get cancelled, बच क्या गया 3. 3 में से 1 निकल गया 2. ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू 26. 26 3 से नहीं कटेगा, दैट इज 2 6 जा 12. 2 2 जा 4 1 5 52 upon 3 प्लस 2 2 जा 4 upon 1. सही है ना. 3 3 जा 9, 3 to the power 3 जा 9, 9 3 जा 27. 27 में से 1 निकल गया 26 and 26 2 6 जा 12. 2 2 जा 4 1 5 upon 3. 2 2 जा 4. This one is equal to 52 plus 4 3 जा 12 upon 3 1 जा 3, that is 2 and 2 4. 5 plus 1 6, 64 upon 3. ठीक है स्टूडेंट्स, बस कैलकुलेशन था और इसमें कुछ तो टेक्निकल सम नहीं है. ओके, बेसिक सम है. तो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 upon 1, 2 6 जा 2 2 जा 4 51, 3 4 जा 12, 2 2 4 5 1 6, 64 upon 3. ठीक है, ये तो रहा बहुत आसान सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर हो गया, आ गया समझ में. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द नोट्स. नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 2 to 3 of 1 upon x square plus 5x plus 6. Students, you can solve this integral using your partial fraction expansion method or using factorization method, means or using your second method is making the perfect square. क्यों? Since your denominator, that is x square plus 5x plus 6 is a quadratic expression. So using perfect square method you can make the perfect squares of this quadratic equation, and after that using some special integrals you could find the answer, that is integration. Okay, so let us find this integration using solution of quadratic expression using perfect square method. कैसे करते थे हम? x square plus 5x plus 6 is our quadratic expression. इसे हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक इट इन परफेक्ट स्क्वायर. इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है. कैसे करते थे? यूजिंग थर्ड टर्म, दैट इज टी टी इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 5. कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 5 upon 2 दैट इज 25 upon 4. सही है. x square plus 5x plus 6 making first of all we have to make the coefficient of x square, that is 1. इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है. तो हमें अपना स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है. और उसके बाद क्या करते थे हम? उसके बाद वी फाइंड थर्ड टर्म. द फार्मूला फॉर थर्ड टर्म इज 1 by 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट क्या है? 5 एंड होल स्क्वायर, दैट इज 25 upon 4. अब स्टेप आप क्या करते थे? इसमें थर्ड टर्म को ऐड करते थे और थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे. सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आवर थर्ड टर्म वी गेट 25 upon 4 माइनस 25 upon 4. उसके बाद मैंने ट्रिक बताया था इन लास्ट लेक्चर. मेक द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स राइट प्लस या माइनस जो भी कुछ भी रहेगा आप वहाँ पर लिखिए. यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए एंड डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x by 2. x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 5 by 2 एंड गिव द पावर 2.
और उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। एंड वी नो दैट दिस वन इज आवर a प्लस बी टू द होल स्क्वायर फॉर्म, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म का है। एंड वी नो दैट दिस ब्रैकेट कंटेनिंग थ्री टर्म्स, दैट इज ए स्क्वायर टर्म प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यह ऊपर से कोई तीन टर्म्स लिया होगा, यानी थ्री टर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ब्रैकेट। कौन कौन सा है, कैसे मालूम करेंगे? फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, दैट इज a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 25/4 प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 कट जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, a मीन्स x, b मीन्स 5/2, 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, we get 5x। तो थ्री टर्म्स आर कंटेनिंग इन दिस ब्रैकेट, तो बच क्या गया, 6 बच गया और 25/4 बच गया, मीन्स 6/1 माइनस 25/4। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, वी गेट x प्लस 5/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 6 4 जा 6 4 जा 24 माइनस 25 दैट इज माइनस 1/4, तो प्लस यहाँ पे था, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का, दैट इज आवर सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर। ये रहा परफेक्ट स्क्वायर्स, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या आप ये तो आपका वेरिएबल टर्म है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन एक्स है, और एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2/3 ऑफ 1/, इसे अभी भी आपने चेंज किया इस फॉर्म में, इट इज x प्लस 5/2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर, और ये रहा dx। ठीक है, 1/2 टू द होल स्क्वायर। अब ये बन गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर। उसका फार्मूला क्या होता है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2a, 2a, a मीन्स 1/2, 1/2a इंटू log ऑफ x माइनस a, 1/2 इंटू log ऑफ x माइनस a, दैट इज x प्लस 5/2 माइनस a मीन्स 1/2 अपॉन x प्लस 5/2 प्लस 1/2। ठीक है, लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 3। आ गया समझ में स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, लोअर लिमिट इज 3 एंड अपर लिमिट इज, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3। Now 2 and 2 get cancelled, we get log of, put the upper limit, that is 3 plus 5/2, तो रख देता हूँ मैं, 3 plus 5/2 minus 1/2, 3 plus 5/2 plus 1/2 minus lower limit means log of 2 plus 5/2 minus 1/2, 2 plus 5/2 plus 1/2। क्लियर? दिस वन इज इक्वल टू log ऑफ, ये हो जाएगा आपका कितना, 3, यहाँ पे 3 आएगा, 3 रहने दो ऐसे, 2 and 2, 5 minus 1 4, 4/2 2, तो 3/2, 5 plus 1 6, 6/2 3, तो 3 plus 3 minus log of 2 plus 5 minus 1, that is कितना, 4/2 2 and 5/6, that is 2 plus 3। This one is equal to log of 3 plus 2 5/6 minus log of 4/5। ठीक है, तो दिस वन इज इक्वल टू, वी नो दैट log of m minus log of n is equal to
log of m minus log of n is equal to log of m by n. Log of 5 by 6 upon 4 by 5 is equal to log of 5 by 6 into 5 by 4, that is log of 25 upon 24. So this one is your answer. ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, कोई दिक्कत? Okay students, तो क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 we have to integrate cot square x dx from 0 to 5 by 4. Students, we know that there are no any formula for cot square x, that is no any integral formula for cot square x, but cosec square x का है, means integration of cosec square x is equal to minus cot x plus c. तो क्या हमें क्या करना है, इसको चेंज कर देना है इन द फॉर्म ऑफ cosec स्क्वायर एक्स. सिंस वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स. इसका मतलब cot स्क्वायर एक्स कितना होगा, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है. किसका है, cosec स्क्वायर एक्स का. मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ एक्स होता है. ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है, cot स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. तो चेंज कर देते हैं. दिस वन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, दैट इज cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, एंड दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4. Okay, so and integral from 0 to pi by 4 dx minus integral from 0 to pi by 4 of 1 dx. We know that integration of subtraction of two distinct functions is equal to integration of first function minus integration of second function, and this one is equal to minus cot of x from 0 to pi by 4 minus integral of 1 with respect to x is x from 0 to pi by 4, and this one is equal to minus cot of pi by 4 minus, but here minus is multiplier, so minus into minus plus, that is cot of 0 minus x is upper limit, x is replaced by upper limit minus x is replaced by lower limit, that is 0. So this one is equal to minus cot 5 by 4 is 1 and cot 0 is 0, और यहाँ पर minus pi by 4 minus 0 pi by 4 ही रहेगा. This one is equal to minus 1 minus pi by 4. ठीक है, तो ये तो रहा आपका आंसर. क्लियर हो गया. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर ना. cot 5 by 4 tan 5 by 4 भी 1 होता है, cot 5 by 4 is 1, so minus 1 cot 0 0 और minus pi by 4 minus 1 minus pi by 4. ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3. ओके, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रल फ्रॉम minus pi by 4 to pi by 4 of 1 upon 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स. तो थोड़ा सा हमें कुछ तो सिंप्लीफिकेशन चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. द फंक्शन इन डिनोमिनेटर इज 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, दैट इज 1 प्लस साइन ऑफ एक्स. ओके, सो यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स पहले से था और मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स है, उसके बगल में अगर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स होगा तो वी गेट कॉस स्क्वायर एक्स इन डिनोमिनेटर. जब कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा तो ऊपर किसी को सिंप्लीफाई करेगा और हम एक सुटेबल फंक्शन पा सकते हैं जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं.
हैं, ठीक है। तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, वी गेट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, 1 इंटू समथिंग समथिंग, मतलब 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बन क्या जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, दैट इज 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है अपन कॉस स्क्वायर एक्स, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दैट इज माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, 1 अपन कॉस स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन, प्लस सेकंड, आपका सेकंड इंटीग्रल क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब, तो वी गेट कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स, दैट इज टैन ऑफ एक्स, करेक्ट, एंड 1 अपन कॉस एक्स वी गेट सेक ऑफ एक्स, 1 अपन कॉस एक्स दैट इज सेक ऑफ एक्स, और ये रहा डी एक्स। आ गया समझ में, ये करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, हमें एक सुटेबल फंक्शन मिल गया जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज टैन ऑफ एक्स होता है, लोअर लिमिट इज माइनस पाई बाई 4 एंड अपर लिमिट इज पाई बाई 4, एंड टैन ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एक्स। भाई सेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स होता है, यहाँ टैन एक्स सेक एक्स है, सो इसका इंटीग्रल कितना हुआ, सेक ऑफ एक्स हुआ, लोअर लिमिट इज माइनस पाई बाई 4 एंड अपर लिमिट इज पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब आपको सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब पुटिंग एक्स बाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वी गेट, ओके, क्या मिला, दिस वन इज इक्वल टू अपर लिमिट दैट इज टैन ऑफ, अपर लिमिट इज पाई बाई 4, टैन ऑफ एक्स यहाँ पे था, तो टैन पाई बाई 4 माइनस टैन ऑफ माइनस पाई बाई 4, ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट, प्लस सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस सेक ऑफ माइनस पाई बाई 4, ठीक है, टैन ऑफ अपर लिमिट टैन पाई बाई 4 माइनस टैन ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस सेक ऑफ एक्स है, एक्स के प्लेस पे पाई बाई 4 रखना है, फिर बीच में माइनस करना है, फंक्शन इज सब्ट्रैक्शन, और सेक ऑफ माइनस पाई बाई 4, एंड दिस वन इज इक्वल टू टैन पाई बाई 4 माइनस प्लस, सिंस tan x is our odd function means tan of minus x is equal to minus tan of x, तो ये कितना हुआ, tan of minus x is equal to minus tan of x, क्यों, क्योंकि ये odd function है, ठीक है, तो इसने माइनस को बाहर निकाला, तो माइनस इंटू माइनस प्लस tan of पाई बाई 4 प्लस सेक ऑफ पाई बाई 4, बट cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस ऑफ एक्स, मीन्स माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये माइनस खत्म हो गया, माइनस एब्जॉर्ब हो गया, तो वी गेट माइनस सेक ऑफ पाई बाई 4, क्योंकि सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस सेक ऑफ एक्स, ठीक है, हमको पता है tan पाई बाई 4 1 होता है, tan पाई बाई 4 1 होता है, प्लस सेक पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 कितना, 1 अपान रूट 2, कॉस पाई बाई 4 इज रूट 2 माइनस रूट 2, ये तो वैसे भी खत्म हो कट गया, क्या बच गया, आंसर इज 2, ओके, सो 2 इज योर परफेक्ट आंसर फॉर इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 4, सॉरी माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 1 अपान 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत students, any problem? Our question number 8 is given as we have to integrate 0 to pi by 4 of under root of 1 plus sine of x. This can be expressed as 1 means 1 can be written as sine square x plus cos square x. Sine 2x is written as 2 sine x into cos of x.
dx, and this one is equal to 0 to pi by 4 under root of, that is a square plus b square plus 2 into a into b. This is a form of a plus b to the whole square, that is you can write it as cos of x plus sin of x to the whole square and dx. ओके, आया समझ में? तो अंडर रूट ऑफ a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट स्क्वायर दैट इज रेडिकेंड इज रिमूव्ड, रेडिकल साइन इज रिमूव्ड, वी गेट 0 टू पाई बाई 4 ऑफ कॉस ऑफ x प्लस sin of x dx, and this one is equal to integral from 0 to pi by 4 of cos of x dx plus integral from 0 to pi by 4 of sin of dx, and this one can be written as integral of cos of x is equal to sin of x from 0 to pi by 4 plus integral of sin of x is minus cos of x from 0 to pi by 4. Okay, and putting the upper limit, that is sin of pi by 4 minus sin of 0 plus minus cos of pi by 4 plus cos of 0. ओके, माइनस बीच में आप माइनस करते हो, ओके, और ए वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2 साइन 0 0 minus cos pi by 4 1 upon root 2 cos 0 is 1. So we get 1 upon root 2 plus into minus minus 1 upon root 2 plus into plus 1, that is 1. Okay, so answer of question number 8, that is we have to integrate 0 to pi by 4 of under root of 1 plus sin of 2x dx is equal to 1. Okay, clear हो गया? Any doubt? Clear ना? So